Good afternoon, students. Now I am going to start the unit number 2 in today's lecture. Few days back we have tried to start this unit, but because of some technical issues we were not able to continue that part. So I am again starting from the basic of this unit. Okay. So try to go through the details of the unit once this lecture has been watched by you guys. Once you have gone through this lecture, read out the notes which is already uploaded on the Moodle platform for you. Okay. So today we are starting with unit number 2, that is electrostatics. Electrostatics stands for a concept of two steady charges. Static means a steady charges. When there are two steady charges kept in a field, you know that the one charge get attracted to another charge if they are opposite in nature. Like suppose there is electron and proton, they will get attracted towards each other. If they are same type of charges like proton, proton, electron, electron, they will repel each other. So for repelling or attraction, they need to apply the force. सो वेयर देयर इज द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्सेस हैव बीन सीन, जो एरिया जिसके अंदर में ये इफेक्ट देखा जाता है उस एरिया का स्टडी जो किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते वक्त यहाँ पे एक टेक्निकल वे में लिखा गया है, ये कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कम्स इन एग्जिस्टेंस when charges remain steady and field does not get varied with respect to time. When charges remain steady at their position and field does not get varied with respect to time, the effect of forces has been observed, and that observed effect of forces are coming under the study of electrostatics. To understand this in detail, Coulomb has presented one law that is also called as the Coulomb's law. According to this law, the force of attraction or repulsion between the two point charges is directly proportional to the square of the distance between them. It is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Means, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two point charges. मान के चलो कि आपने हवा के अंदर में दो या एक फील्ड के अंदर में दो चार्जेस रख दिए, वो दोनों 2 मिनट के लिए अपन ऐसा मानते हैं कि दोनों अपोजिट नेचर के, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करेंगे. तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस जब वो लगाएंगे एक दूसरे की तरफ, तो वो फोर्स कूलम ने किस तरीके से डिफाइन किया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ. कितना फोर्स लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ. अगर पहले का वैल्यू Q1 है, दूसरे का वैल्यू Q2 है, तो प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of the distance between. So it is F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is inversely proportional to 1 upon D square, where D is the distance between the two charges. ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है D. तो जब Q1 को Q2 पे चार्ज फोर्स लगाना होगा तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा D, और जब Q2 को Q1 पे लगाना पड़ेगा तो उसको भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा D. तो D इंटू डी कितना हो गया, D स्क्वायर. इसीलिए इसको आप टोटल में ऐसा लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर. अब मैथमेटिक्स में अगर समझ लो अपने को प्रोपोर्शनैलिटी साइन को निकालना है, तो अपन मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को निकालने के बाद उसकी जगह पे डालते हैं इक्वल टू, और प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करने के बाद वी हैव टू प्रोवाइड द कांस्टेंट. कूलम ने यहाँ पे के नाम का एक कांस्टेंट प्रोवाइड किया है, तो आप ऊपर के इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, where Q1 is the strength of charge 1, Q2 is the strength of charge 2, and D is the distance between them. K is also called as a Coulomb constant. It is replacement of the proportionality sign. So it is called as a Coulomb constant because Coulomb has given this constant. Coulomb का बोलना क्या था कि K की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/4πε. अब सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 1/4πε क्यों है. तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा इमेजिन करते हो, तो आपको ये चीज समझ में आएगी. एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, मतलब permittivity मतलब when one charge is attracting another charge, they are sending the force of attraction. एक लाइन ऑफ फोर्सेस वो उनकी तरफ भेज रहे, तो हर एक लाइन उस चार्ज को क्रॉस करके नहीं जाएगी, कुछ लाइन उस चार्ज में से जाएंगी, कुछ लाइन उसके आजू बाजू से निकल जाएंगी. The lines which are allowable or which are allowed to pass through the another charge is called as a permissible line or permittivity of that particular charge. तो एप्सिलॉन. अब 4 पाई क्या है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितने डायरेक्शन से फोर्स भेज सकता है, पूरा 360 डिग्री में. 360 मतलब कितना होता है 2 पाई. तो दूसरा चार्ज भी कितने से भेज सकता है 2 पाई, तो 2 पाई मिला के कितना होता है 4 पाई. तो इसीलिए
उसका ऐसा बोलना था कि कूलम कांस्टेंट क्या आएगा 1/4 पाई। तो आपका कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इट इज लाइक दैट। अब हर एक तीन को टर्म को अपन समझने की कोशिश करते हैं। नोट, ई इज इक्वल टू, मतलब परमिटिविटी तीन टाइप की होती है, ई0, ईआर एंड ईआई। ई0 स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, a permittivity of free space or air, that is E0. ER is a relative permittivity. रिलेटिव मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में कंपैरिजन हो रहे हैं। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेबल। तो वन चार्ज इज कंपेयर्ड विद अनदर चार्ज एंड अनदर चार्ज इज कंपेयर्ड विद वन चार्ज, so their permittivity in relative cases is called as a ER, and EI is called as a EI is called as a intrinsic permittivity in some of the medium। ठीक है, ईआर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी की, केस फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए वो 1 होती है, क्योंकि 1 मतलब कांस्टेंट, 1 का मतलब होता है कांस्टेंट। और एयर में सभी चार्जेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1। एब्सोल्यूट परमिटिविटी हर एक मीडियम की फिक्स है। अगर न्यूमेरिकल में अपने सामने कभी भी E0 की वैल्यू डालने का काम आएगा, तो E0 की सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, 8.85 इंटू 10⁻²। आई रिपीट, E0 is having the constant value 8.85 into 10⁻12, ओके, नैनो वैक्यूम इलेक्ट्रिक। अब इसी पर से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो लॉ है वो है कूलम्स। पर जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो कितने की इंटेंसिटी से या कितने की स्ट्रेंथ से लगाता है, वो पढ़ने के लिए अपने को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू कूलम्स लॉ। कूलम के हिसाब से एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज आई एम पुशिंग यू, सो हाउ मच इंटेंसिटी आई एम अप्लाइंग। मैंने अगर 10 न्यूटन के वैल्यू से आपको पुश किया है, तो कितने लोगों को पुश किया है, एक चार्ज को मैंने कितने की स्पीड से पुश किया है, वो हो गया मेरा इंटेंसिटी। तो इट इज ई एन कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब एफ बाय, समझ लो अपन Q1 पे लगा रहे हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं, तो एफ बाय Q1। अगर Q2 पे लगा रहे हैं तो एफ बाय Q2। अब Q1 मान के चलो एक ए लोकेशन पे है, तो फॉर्मूला क्या है, ई एन इज इक्वल टू एफ का फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। अभी अपन ने देखा ना कूलम्स का फॉर्मूला, वापस आओ यार, ये एफ का फॉर्मूला क्या है कूलम्स से, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं एफ की जगह पे उसका फॉर्मूला डाल देता हूँ Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1, तो Q1 हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर आएगा बार, इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। अब बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, इंटेंसिटी किसकी है, Q1 की, तो वो लगाएगा किसके ऊपर, Q2 पे, तो ऊपर कौन आएगा, Q2। अगर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं Q2 की, तो यहाँ पर Q2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कौन आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी। तो याद रखने का तरीका कैसा है, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q1 इज इक्वल टू अपोजिट चार्ज, दैट इज Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब जैसे मैंने बोला कि एक चार्ज कुछ क्वांटिटीज अपन समझ ले रहे हैं, ठीक है, बाद में अपन एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स when one charge is sending the line of forces on another charge and another charge is sending the line of forces on the first charge, the amount of line passes from one charge to another charge is called as electric flux. Electric flux is nothing but an imaginary line of forces, we can't see that line। अगर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अपने को दिखता है क्या उनके बीच में, नहीं, इट इज इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस generated from positive charge and terminated at negative charge. Normally it starts from higher, that is positive, to lower. According to Gauss law, or according to Gauss, the fluxes is denoted by psi। This unit is what we are calling as a psi। U की तरह साइन और उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन, ये होता है psi। psi इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस। कितनी लाइन ऑफ फ्लक्सेस आएंगी, जितने नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे। मान के चलो दो चार्जेस हैं, तो उनके बीच में लाइन कितनी आएंगी, दो। एक Q का Q1 का Q2 पे लाइन, और Q2 का Q1 पे लाइन। तीन चार्जेस है तो लाइन कितने आएंगी, तीन, Q1 Q2 लाइक दिस, तो उनको कनेक्ट करने के लिए टोटल तीन लाइन लगेगी। उसके बाद अब इस फ्लक्स की अगर अपने को डेंसिटी निकालनी है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ, तो कंसीडर उसको डेरिवेट कर दो। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का डेंसिटी निकालना मतलब उसको डेरिवेट करना है, और उसका टेक्निकल डेफिनेशन कैसे होगा, कंसीडर अ डिफरेंशियल सरफेस ds, मतलब एक एरिया कंसीडर करो
under the influence of electric flux line. Under the influence of electric flux line. Let d phi is the amount of flux, matlab rate of change of flux, and ds is the surface. Then d phi by ds is called as electric flux density and denoted by d bar. So d bar is equal to d phi by ds. Rate of change of fluxes with respect to surface is electric flux density. ठीक है, ये दिस इज द फैक्टर. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने सामने, that is called as a expression of potential difference. It is one of the very important expression. One needs to understand this expression. It is one of the important as long as the paper is concerned. आप पेपर के अंदर किस तरीके के एक्सप्रेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है. अब पहले वो कंसेप्ट समझते हैं, बाद में डेरिवेशन तो बहुत आसानी से समझ में आएगा. कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट एनी पॉइंट A. हवा में एक पॉइंट ए है, वहां पे एक चार्ज Q रखा गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज शोन इन द फिगर. ठीक है, फिगर दिखाया गया है. ये देखो, एक पॉइंट चार्ज ए है, यहाँ पर Q नाम का एक चार्ज रखा गया है और उस पर से अब क्या होने वाला है आगे अपन पढ़ते हैं. Let us apply, we apply force F is equal to QE on point charge A. Charge gets displaced from point A to point B. A पॉइंट पे एक चार्ज था, उसके ऊपर अपन ने एक फोर्स Q इंटू ई नाम का फोर्स लगाया. अब ये कहाँ से लाया Q इंटू ई. अभी वापस जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला के ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. तो Q अगर उधर लेके गए तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई. तो समझ लो अपन पॉइंट ए पे जो चार्ज था उसके ऊपर अपन ने क्यू ई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो वो ए से थोड़ा आगे चले गए. तो मान के चलो अपन उसने डीएल डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो बी पे गए. ठीक है, we have, and now our aim is to bring that charge at their original position. Our aim is to bring that charge to the original position. We have to apply force F is equal to minus E. और मान के चलो मैंने आपको एक जगह से धक्का दिया, 10 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स से मैंने आपको धक्का दिया और आप 10 मीटर आगे चले गए. तो 10 मीटर पीछे आने के लिए सामने वाले को भी आपको कितना धक्का देना पड़ेगा. अगर अपोजिट साइड से पूछे तो आपको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इक्वल फोर्स मतलब -10, 10 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 0. और आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कहा गए वापस आ जाएंगे. द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एज DW. अब ये जो काम करने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू डू फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू ए इज रेफर्ड एज ए DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज. इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क कितना हुआ है, जितना फोर्स लगाया और जितने से आगे गया है, इनटू DL. So D is equal to F DL bar, but D F DW is equal to F का मतलब क्या है, माइनस क्यू यू. क्योंकि पीछे आया है B टू A निगेटिव, वहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में. तो माइनस को बाहर ले लेते हैं अपन, और Q एक चार्ज है, चार्ज के ऊपर तो अपन इंटीग्रेशन लगा नहीं सकते. तो DW का अपने को W निकालना है, मतलब टोटल वर्क है. ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क. टोटल मतलब अब DW में से D निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ W DW इज इक्वल टू W फ्रॉम बी टू ए. कहाँ से लगाना पड़ेगा अपने को, बी से ए, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रैवल किया है, ए टू बी. तो माइनस क्यू ई डी एल, क्यू बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एल. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो फॉर्मूला में, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज V इज इक्वल टू W बाय Q. तो W बाय Q इज इक्वल टू V का मतलब W का वैल्यू अपन ने ऊपर निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Q इंटू बी टू ए ई डी एल बार अपॉन Q. Q Q हो गया कैंसल. तो VBA दैट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम इंटीग्रेशन B टू A E बार इंटू DL बार. अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड से. जैसे इधर डिफरेंशिएट करेंगे V का क्या हो जाएगा DV, और इंटीग्रेशन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा EDL बार माइनस EDL बार. तो E बार कितना हो जाएगा, माइनस उधर DL उधर, तो माइनस DV बाई DL. ये है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये काय का एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आपको ध्यान से समझना. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. अब इसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है. सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई बार. चलो अभी क्या है, मैं तुमको सिंबल रिमाइंड कराता हूँ पहले. एफ का मतलब क्या होता है, कूलम फोर्स और फोर्स. उसका फॉर्मूला क्या है, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर. ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन Q. अगर आप Q1 के लिए निकाल रहे हो तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर, Q2 के लिए निकाल रहे हो तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर. ठीक है,
उसके बाद साई का मतलब वो क्या होता है, इज इक्वल टू फ्लक्स, और डेंसिटी डी बार का मतलब क्या होता है, डी साई बाय डी एस, और ई बार का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी वी बाय डी। अब इसका क्या बोलना है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई बार इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ई बार का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो माइनस डेल बार डॉट वी आना चाहिए। चलो ठीक है, ग्रेडियंट निकाल के देखते हैं क्या है। तो अपन ये समझने के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल मतलब दो दो पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब दो अलग अलग डिस्टेंस अपन कंसिडर करेंगे। तो लेट अस कंसिडर v is one location and v plus dv मतलब v से थोड़ा आगे is another location. Let point P is placed at V and point Q is placed at V plus dV. The distance between P and Q is a dl bar. तो x y z can be changed to x plus d. जब से V से V plus dV मतलब थोड़ा आगे है, तो x से x plus ds थोड़ा आगे, y से y plus dy थोड़ा आगे, और z से z plus dz थोड़ा आगे। ठीक है, considering nearing equipotential surfaces और differences v plus dv, let p and q be the any two point। वही मैंने बोला कि दो डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपन ने कंसीडर किए, एक के ऊपर पॉइंट p रखा है, एक के ऊपर पॉइंट q रखा है। ठीक है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है x y z और q आगे है, तो x plus dx y plus dy z plus dy। अब अगर अपने को इनका डिस्टेंस निकालना है, तो x पहला ओरिजिनल डिस्टेंस है, x प्लस डी एस फाइनल डिस्टेंस है, y पहला डिस्टेंस है, y प्लस डी वाई फाइनल डिस्टेंस है, z पहला डिस्टेंस है, z प्लस डी जेड फाइनल डिस्टेंस है। मतलब मान के चलो आप 10 पे थे 20 पे गए, तो आप कितना आगे गए, 20 माइनस 10। आप 10 पे थे 25 पे गए, तो 25 माइनस 10 15। तो आपको पता करना पड़ेगा, तो डी एल बार कैसे निकालेंगे, डी एल बार इज इक्वल टू पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। तुमको मालूम है वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। इट इज एक्स प्लस डी एक्स ax cap y plus dy ay cap and z plus dz az cap minus x ax cap y ay cap z az। अब x में से x चले जाएगा, y में से y चले जाएगा, और z में से z चले जाएगा, तो बचेगा क्या, dx ax cap dy ay cap एंड dz az। ये वैल्यू का क्या आई है, dl बार। चलो ठीक है, इसको स्टोर करके रखते हैं अपने पास। अब निकालते हैं अपन डेल बार डॉट v की वैल्यू। क्यों निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, और अभी निकालते हैं। तो डेल बार का फॉर्मूला क्या है, डेल डेल एक्स एक्स कैप, डेल डेल वाई ए वाई कैप एंड डेल डेल जेड ए जेड कैप, और इनटू वी करना है। तो वी सबको अंदर आ जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स एक्स कैप, डेल वी बाय डेल वाई ए वाई कैप एंड डेल वी बाय डेल जेड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, डेल बार डॉट वी इंटू डी एल। तो ये क्या आ जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स ए एक्स कैप, डेल वी बाय डेल वाई ए वाई कैप एंड डेल वी बाय डेल जेड ए जेड कैप इनटू डी एक्स ए एक्स कैप डी वाई ए वाई कैप डी जेड ए जेड कैप। अब मुझे बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो एक्स इंटू एक्स कितना होगा 1, ए वाई इंटू ए वाई कितना होगा 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और ए जेड इंटू ए जेड कितना होगा 1। तो बचेगा क्या, डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स, डेल वी बाय डेल वाई डी वाई, डेल वी बाय डेल जेड डी जेड। इट इज वन ऑफ द इक्वेशन, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर ए। इसको इक्वेशन नंबर ए करके कंसीडर करते हैं। अब समझो मैंने सिर्फ पहला पोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया v, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z। उसको डेरिवेट करने के लिए गया, तो पार्शियली डेरिवेट कैसे करते, डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स, डेल वी बाय डेल वाई डी वाई, डेल वी बाय डेल जेड डी जेड, सेम एज दैट ऑफ ऊपर का इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन था ये v का पार्शियल डेरिवेटिव था। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल बार डॉट v डीएल बार इज इक्वल टू dv। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डेल बार डॉट v बार इज इक्वल टू dv। बट फ्रॉम द प्रीवियस एक्सप्रेशन वी लर्न दैट, वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैंने आपको एक्सप्रेशन पढ़ाया था ये वाला, इसमें से अपन ने क्या सीखा कि ई बार इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल। तो डी एल अगर इधर चले गया तो डी वी कितना हो जाएगा, माइनस ई डी एल। तो मैं अगर डी वी की जगह पे माइनस ई डी एल पुट करता हूँ, तो यहाँ पर है डेल बार डॉट वी डी एल और इधर है माइनस ई डी एल कैंसल, माइनस उधर चले गया, तो E bar is equal to minus del bar dot V. That is electric field intensity is a negative gradient of voltage or potential। इस तरीके से एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, समराइज हो जाएगा। और मैं तो आपको ये एक्सप्रेशन करना कैसे था, बहुत सिंपल तरीके से आपको निकालना क्या था, E bar is equal to minus del bar dot V। तो आपने पहले क्या निकाला, डी एल बार को मल्टीप्लाई किया डेल बार डॉट वी से, जो आपने आंसर निकाला वो सेम था डीवी के पार्शियल डेरिवेटिव से, उन दोनों को कंपेयर किया और डीवी को रिप्लेस किया आपने माइनस ई डी एल बार से, तो ताकि आपको मिल गया ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल बार डॉट। ठीक है, ये हो गया अपना आज का लेक्चर। इतना आपको रिवाइज करना है और आगे के लेक्चर में मुझे